Hello everyone, this is Katie here. In this video, I'm going to explain you today the EVS chapter 11 families. This is the part 1 of the video. And in my next video, part 2, I will finish the complete chapter families. I have divided this family chapter into two parts, part 1 and part 2. The first half I'm going to explain you in part 1. And the second half I will explain you in part 2. So don't forget to watch both of my videos, part 1 and part 2, to understand the chapter families properly. Hello everyone, this is Katie here. आज हम लोग EVS का चैप्टर 11 फैमिलीज करेंगे. मैं इस चैप्टर को दो हिस्से में पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पहला हिस्सा पार्ट 1 में मैं एक्सप्लेन करूंगा और दूसरा हिस्सा पार्ट 2. तो आप सभी मेरे दोनों वीडियो देखें, तभी आपको समझ आएगा. So keep on watching my video and enjoy the video. Happy digital learning. Have a good day. Now I'm going to explain you the chapter families from your textbook. I am going to explain you, read out from your textbook the chapter, and line by line I am going to explain you. I hope you have understood. You can see on the screen the school textbook, which I'm going to explain you, families, chapter 11, families. I'm going to read out, pay attention, watch it, my video from beginning till end. अब मैं फैमिली चैप्टर आरंभ करने वाला हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने. Families. This is Noel's description of his family. ये डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है, ये नोएल्स कोई बालक है और उसने ये डिस्क्रिप्शन अपने फैमिली के लिए दिया है. देखते हैं नोएल क्या डिस्क्रिप्शन दिया है अपने फैमिली के लिए. लेट्स सी व्हाट डिस्क्रिप्शन Noel has given for his family. Now Noel is saying, "Hi everyone, I am Noel and have just turned 9." Noel कहता है कि मैं अभी 9 वर्ष का हुआ हूं. I used to live in a small family of only 4 members, which included my father, my mother, and my dog Joy. तो नोएल कहता है, मैं पहले एक स्मॉल फैमिली में रहता था और उस छोटे से परिवार का हिस्सा हुआ करते थे मेरे पिता, मेरी माताजी, मैं और मेरा पालतू कुत्ता जॉय. Last year, my grandparents came to live with us. पिछले वर्ष मेरे दादा दादी भी मेरे साथ रहने आ गए. We are now a big family with 7 members, which also include my baby sister.
अब मेरा बड़ा परिवार है। अब हम लोग 7 सदस्य हो गए हैं परिवार में, जिनमें मेरे दादा दादी और मेरी बहन वानिया भी आ चुकी है। वी अडॉप्टेड हर फ्रॉम एन ऑर्फेनेज। हम लोगों ने वानिया को गोद लिया है, जो एक अनाथ आश्रम से उसे हम लोगों ने लिया है। We were all very excited to greet the newest member of our family. और हम सभी अपने नए सदस्य को ग्रीट करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए उतारू थे, एक्साइटेड थे। So like that, you have seen how Noel has described about his family, and he said with the help of his description what is a small and what is a big family is. तो आपने देखा कि जिस प्रकार नोएल ने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके अनुसार छोटा फैमिली और बड़ा परिवार, छोटा परिवार और बड़ा परिवार क्या है, उससे हम सभी को पता चल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। दिस इज द टेक्स्ट बुक ऑफ योर स्कूल। ये आपका ही टेक्स्ट बुक है स्कूल का। ये आप ही का स्कूल का पुस्तक है जिससे मैं पढ़ रहा हूं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फैमिली। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू about the family ladder. अब मैं परिवार के अलग अलग परिवार क्या होते हैं, मैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ फैमिली, we know that our parents and siblings are our immediate family, and other relatives who do not live with us are our extended family. तो यहाँ पर we have understood what is the two different types of families description has been given here. What immediate family and extended family include, what immediate family means, and what extended family means. Here we are going to discuss about it. So if you can see, immediate family includes siblings, that is brother and sister, and parents, that's mean हमारे माता पिता और हमारे भाई बहन, सिबलिंग जिसे कहते हैं, हमारे भाई बहन और माता पिता जहां पर हो, ऐसे फैमिली को मिलाकर हम कहते हैं इमीडिएट फैमिली। और जहां हमारे रिश्तेदार, जो दूर के रिश्तेदार जो हमारे साथ नहीं रहते, जो अलग रहते हैं, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ what a sibling and what is extended and immediate family is. So you have seen what is extended and immediate family. Now I'm moving further. अब मैं
आगे बढ़ता हूं। Now different kinds of family. Now I'm going to explain you about different kinds of family. Different types of family क्या है वो अब हम देखेंगे. Different kinds of families. But before moving there, I would like to explain you what is knowing is fun. Knowing is fun में जाकर कुछ interesting चीज जानते हैं. The family members on our father's side are our paternal relatives, while those on our mother's side are our maternal relatives. मतलब जो हमारे पिताजी के तरफ से जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे परिजन हैं, उसे पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं. और जो हमारे माता के तरफ से की ओर से जो भी रिलेटिव्स, जो भी रिश्तेदार परिजन हैं, उसे हम मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं. Now different kinds of families. I'm going to discuss about the different kinds of families. These are different kinds of families that we read about in the previous classes. हम लोगों ने previous classes में भी पढ़ा था what are different kinds of families, and the same thing now I'm going to repeat here. अब हम लोग यहाँ पे different type of families क्या है वो देखते हैं. You can see here that here the different kinds of families. There are basically three types of families are given here. First of all, the nuclear family, then joint family, and then single parent family. Now I'm going to discuss each of them. What is the nuclear family? तीन तरह के परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली या सिंगल पैरेंट फैमिली. अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली क्या है. What is nuclear family? Let's see. A unit, nuclear family is a unit in which father, mother, and children live together. So nuclear family is a unit in which father, mother, and children live together. तो न्यूक्लियर फैमिली उसे कहते हैं जहां पर पिता, माता और बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. बस माता पिता और बच्चे जहां हो वो किस प्रकार का फैमिली बोला जाता है? न्यूक्लियर फैमिली. Now joint family. Now let's see what is a joint family. What is joint family includes? A joint family includes a unit in which parents, children, grandparents, and other relatives live together. तो जॉइंट फैमिली वो फैमिली है जहां पर माता पिता, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी और उसके बाकी रिश्तेदार भी एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं, उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं. नाउ कम टू सिंगल पेरेंट फैमिली. अब हम लोग सिंगल पेरेंट फैमिली में आ जाते हैं. Let's see what is a single parent family. A family in which children live either with their mother or father. सिंगल पेरेंट फैमिली वो परिवार है जहां पर माता पिता अलग अलग रहते हैं और बच्चे या तो माँ के पास हो या तो पिता के पास हो. ऐसे परिवार को सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं. तो आप लोगों ने देखा तीन तरह के परिवार कौन कौन है: न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड सिंगल पेरेंट फैमिली. So you have understood what are the three types of families are there: nuclear family, joint family, and single parent family. I hope all of you have understood this chapter till here. आशा है आप सभी को यहाँ तक चैप्टर समझ में आया होगा. Now let's move ahead. अब आगे चलते हैं.
चेंजेस इन फैमिली। अब हम लोग देखेंगे परिवार में बदलाव। परिवार हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। परिवार में एक संख्या नहीं होती, सदस्य कभी 5 है तो कभी 6 हो जाते हैं, कभी 5 तो कभी 8। कोई हमारे परिवार में नया जन्मता है तो कोई हमारे परिवार से बहुत दूर चला जाता है। Sometimes the numbers of the family increase or decreases according to the requirement, according to the changes. Let's see what are the changes come in the family. आइए देखते हैं क्या बदलाव या क्या फर्क परिवार में आते जाते रहते हैं। देखते हैं चेंजेस इन फैमिली। Changes occur in our family life due to various reasons. हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में बदलाव आता रहता है। पर ये बदलाव क्यों आता है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अराइवल ऑफ अ न्यू फैमिली मेंबर। हमारे घर में किसी नए सदस्य का आगमन जब हो जाता है तो हमारे परिवार में बदलाव आ जाता है। नए परिवार का आगमन होता है, नए सदस्य का। द बर्थ ऑफ अ बेबी इन द फैमिली इज एन ओकेशन ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। जब हमारे परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो परिवार में नई खुशी आती है, नई सोच आती है और परिवार उत्साह से भर उठता है। A family increases in size when a baby is born or adopted. जब हम किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद लेते हैं या जब हमारे परिवार में नए बच्चे पैदा लेते हैं तो हमारे परिवार की संख्या बढ़ जाती है। कल तक 4 था तो इस नए बच्चे के पैदा होने के बाद 5 हो जाते हैं, 6 था तो 7, 7 था तो 8 हो जाते हैं। When there is a marriage, we welcome a new member into the family. ये जरूरी नहीं कि जब घर में बच्चे पैदा हों तभी ही परिवार में एक नए सदस्य आते हैं, ये जरूरी नहीं। जब शादी होता है तो जब लड़कों की शादी होती है तो वे बहू को अपने घर में लाते हैं, तो इस स्थिति में भी एक नए सदस्य हमारे घर में आता है तो इससे भी हमारे घर में एक नए सदस्य बढ़ जाते हैं और बदलाव आ जाता है। So we have seen how the arrival of a new family member changes the number in our family. तो हम लोगों ने देखा कि एक नए सदस्य के आ जाने से हमारे परिवार में की संख्या बढ़ जाती है और क्या बदलाव आ जाता है। Now let's go to the next point. Shifting to a new house. कभी कभी हम परिवार एक साथ एक स्थान पर नहीं रहते। कभी कभी हम लोग अगर जब परिवार बढ़ जाता है तो हमें बड़ा घर लेने की आवश्यकता भी होती है। तो ऐसे परिस्थिति में हम अपने घर को बदलते हैं, नए स्थान पर चलते हैं किसी भी कारण। A family may shift from one house to another due to various reasons. परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते ही रहते हैं, अलग अलग कारण। क्या कारण हो सकते हैं? Like the location of school or office or the need for a larger space. कभी कभी माता या पिता जो काम करते हैं उनका तबादला कहीं हो जाता है जिसके कारण उसके स्कूल या ऑफिस बदल जाते हैं, या स्कूल या ऑफिस बहुत दूर पड़ते हैं तो परिवार ये सोचते हैं कि हम अपने स्कूल या ऑफिस के सामने ही एक नया घर ले लें। या कभी कदार हमारे परिवार की संख्या बढ़ जाती है तो हमें नए घर की आवश्यकता होती है, बड़े घर की आवश्यकता। तो इसी परिस्थितियों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और हमारा परिवार एक घर से दूसरे घर जाता है और बदलता है और इस तरह परिवार में बदलाव आते रहता है। This is also a big chance for family. And here is how changes come in our family. Now let's come to another reason. Job in another city. और एक कारण है जो परिवार बदलते रहते हैं वो है नए शहर पर काम। अगर पिता या माता जो हमारे काम करते हैं अगर उन्हें कहीं तबादला हो गया नए शहर में, उसकी तबादला हो गई तो पूरे परिवार को उठकर जाना पड़ता उन्हीं के साथ नए
स्थान पर। Sometimes families job in another city. Sometimes families have to move to a new city for a new job. Children also might move to a new city for higher studies. This also brings about a big change in the family. ये जरूरी नहीं कि माता पिता के काम तबादला हो जाए तभी फैमिली को एक स्थान से दूसरा स्थान जाना पड़ता है। मान लो कभी आपको नए जगह नौकरी मिल गई है या किसी नए कॉलेज में जो बहुत दूर है आपके घर से, वहां दाखिला हो जाता है, तो उस कारण भी पूरा परिवार एक नए स्थान पर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। सो these all here, this is how the changes come in the family. बस इसी तरह से परिवार में बदलाव आने लगते हैं। सो इन दिस वीडियो टिल हियर, बस इस वीडियो में यहीं तक। इन माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आई विल टेल यू अबाउट लर्निंग फ्रॉम आवर फैमिली। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगा क्या हम अपने परिवार से सीखते हैं। सो टिल देन, गुड बाय, कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो। Goodbye, see you again.